بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات کی رائشی رسول بیگم کو بچوں نے گھر سے نکال دیا تو ریلوے اسٹیشن پر رہنے لگی، اور اس کے پاس ایک گائے تھی جس کو وہ سارا دن چرا کر اس کا دودھ نکال کر گزارا کرنے لگی، اور 3 سال میں اس کے پاس 3 گائیں ہو گئیں، اور اس نے نیت کی تھی کہ وہ انہیں بیچ کر حج کرے گی۔ جب اولاد کو بھینسوں کا پتہ چلا تو وہ لالچ میں آ کر رسول بیگم کو لینے آ گئے۔ جب وہ نہ گئی تو اگلے دن اس کی بھینس چوری ہو گئی، اور لوگ اسے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرانے کا کہنے لگے تو وہ روتے ہوئے بولی، میں نے اللہ کے ہاں رپورٹ کرا دی ہے۔ اگلے ہی روز جب وہ اٹھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ پورے ریلوے اسٹیشن، جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی میں گجرات کے ریلوے اسٹیشن کی ایک طرف رسول بیگم نے اپنا جھونپڑا بنا رکھا تھا، جو کہ کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ یخ سردی ہوا نے تو جیسے رسول بیگم کی بوڑھی ہڈیوں کو تھرتھرا کر رکھ دیا تھا۔ جب سردی کی شدت بڑھی تو وہ کام کر اٹھ بیٹھی، دونوں اونٹ بری طرح سے کپا رہے تھے، چارپائی پر لیٹے لیٹے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی رضائی اس کی سردی کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکدم اسے خیال آیا، اس خیال نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا کہ وہ حواس باختہ سی ہو گئی، کہنے لگی، ہائے میری تینوں بھینسیں سردی سے کہیں مر نہ جائیں۔ اس لیے جلدی سے رضائی کو پیچھے کیا۔ جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے اسے مزید ٹھٹھرانے پر مجبور کرنے لگے، لیکن اپنی بھینسوں کی اسے بے حد فکر تھی۔ اپنی پھٹی رضائی کو ہاتھوں میں لیے وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جھونپڑے کی ایک جانب آئی، جہاں تینوں بھینسیں آپس میں جڑ کر بیٹھی تھی، سردی کے مارے کپا رہی تھی۔ اس نے اپنی بھینسوں پر وہ رضائی دے دی۔ وہ بھینس بڑی تشکر بھری نظروں سے رسول بیگم کو دیکھنے لگی۔ بھینسوں کو تو اس نے اپنی رضائی دے دی تھی، لیکن خود کانپنے لگی۔ 55 سال کے لگ بھگ رسول بیگم کی عمر تھی، کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، لیکن آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نیچے والا بچا بسترا اس نے اوپر لے لیا تھا، چارپائی بھی اتنی ڈھیلی تھی کہ وہ بیچ میں گھس گئی تھی۔ پوری رات رسول بیگم کانپتی رہی، ایک لمحے کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی، لیکن دل میں جذبہ ایمانی اس قدر بلند تھا کہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ کہتی تھی کہ اس سال تینوں بھینسوں کو بیچ کر پیسے اکٹھے کروں گی اور اللہ کا گھر دیکھنے جاؤں گی، حج کی ادائیگی کروں گی، پھر چاہے موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ رسول بیگم کو اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، صرف مشقتیں ہی کاٹی تھی۔ اس رات کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اس کی مکمل خوشی نصیب ہوئی ہو۔ چھوٹی سی تھی جب اپنے گھر میں بندھی گائیں بھینسیں بڑے شوق سے سنبھالتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لگ کر گائے کے گوبر کے اوپلے اٹھاتی، اس کو دیواروں پر لگا دیتی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے اس نے جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ سسرال کا ماحول بھی ایسا ہی ملا تھا۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ گائے بھینس کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے شوہر نے جب اسے اس کی خواہش پوچھی کہ تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، میں تمہیں وہی چیز لا کر دوں گا۔ نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے شوہر نے سمجھا کہ شاید وہ کانچ کی چوڑیاں یا بالوں کے لیے پرانا مانگ لے گی اور وہ اسے لا کر دے گا تو خوش ہو جائے گی، لیکن جو بات رسول بیگم نے کہی وہ سن کر اس کا شوہر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، مجھے حج کا بہت شوق ہے، نور محمد مجھے حج کروا دے۔ رسول بیگم کا شوہر نور محمد کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ میرا اتنا کام نہیں کہ میں تجھے حج کروا سکوں، ہاں لیکن تجھے میں روز کا خرچہ دوں گا تو جمع کر لینا، آگے جیسے تیرے اور میرے رب سونے کی مرضی، وہ ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ رسول بیگم کہنے لگی کہ پھر تو سالوں سال لگ جائیں گے نور محمد، کہیں میں بوڑھی ہو گئی۔ یہ سن کر نور محمد ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو پیسے جوڑ کر اس سے ایک بھینس خرید لے اور اس بھینس پر خوب محنت کرے گی، جب وہ اچھی صحت مند ہو جائے گی پھر اسے اچھی قیمت میں بیچ دینا، تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے جس سے تیرا حج ادا ہو جائے گا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی۔ اس کے باوجود اس نے پیسے جمع کر کے ایک بھینس خریدی۔ جیسے جیسے اس کے وجود میں بچے نے پرورش پائی، ایسے ایسے گائے نے بھی پائی تھی۔ اس نے بچے کے ساتھ ساتھ گائے کا بھی بڑا خیال رکھا۔ بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ گائے کا بہت خیال رکھتی رہی۔
लेकिन बड़ा बेटा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था। एक बार उसे नमूनिया हो गया और गांव में उस किसी के पास इलाज न था। नूर मोहम्मद बेहद परेशान हो गया। तो फिर रसूल बेगम ने बड़े बेटे की खातर वो भैंस बेचकर पैसा लिया और दोनों मियाँ बीवी बच्चे को शहर ले गए और बच्चे का इलाज करवाया। उसका बेटा तो भला चंगा हो गया, लेकिन पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। रसूल बेगम की तो फिर से मेहनत और कोशिश जारी हो गई और फिर से पैसे जोड़ने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। वो पैसे जमा करती, पैसे पालती और जब उसे बेचकर हज के लिए जाने का वक्त आता तो कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता। कभी बेटी का जहेज तो कभी बेटे की शादी। ऐसा कर करके वो भैंस बेच देती और दोबारा से मेहनत मुशक्क़त में लग जाती। तमाम बच्चों के फ़रज़ अदा करते करते रसूल बेगम की उम्र 50 साल तक पहुंच गई थी कि उसका शौहर नूर मोहम्मद भी उसका साथ छोड़ गया। उस दिन तो बेगम फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, नूर मोहम्मद, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे। तुम बिना हज किए क्यों अल्लाह के पास चले गए? उसे लगा था कि शौहर के जाते ही बेटे उसे संभाल लेंगे, लेकिन इस मामले में वो खुश नसीब ना निकली। बेटों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता रसूल बेगम से बदलने लगे। पहले तो रसूल बेगम की चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी गई। जहाँ पर घर का कार कबाड़ रखा था वहीं उसकी पुरानी सी चारपाई जो कि काफ़ी ढीली हो चुकी थी उसके बेटों ने बिछा दी। कहने लगे, अम्मा तो एक बूढ़ी जान है, इतना बड़ा कमरा तो क्या करेगी? हमारे बच्चे कमरे में नहीं सोते, हमारा गुजारा मुश्किल है, इसलिए तेरा बड़ा कमरा बच्चों को दे देंगे। तीनों बेटों को के दो दो बच्चे थे। रसूल बेगम ने इस बात पर भी कोई इतराज़ न किया, लेकिन उसके बाद बहू ने तो उसे नाश्ता खाना पानी भी देना छोड़ दिया। कहने लगी, हट्टी कट्टी औरत है तो अपना बोझ खुद उठा। रसूल बेगम ने भैंसें पाल रखी थी, लेकिन उसका दूध निकाल कर बहुएँ इस्तेमाल करने लगी। इसमें से वो रसूल बेगम को कुछ न देती, लेकिन इस भैंस की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रसूल बेगम की थी। वो कभी कभार बीमार हो जाती और किसी बहू से कह देती कि भैंसों को ज़रा चारा डाल दो, तो वो उल्टे पाँव हाथ मारती, कहती कि हम फारग नहीं हैं इन कामों के लिए, और भी बहुत से काम हैं हमें। वो बेचारी बीमारी के बावजूद अपनी भैंसों को संभालती थी। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि अम्मा अब तो सहन में चारपाई बिछा कर सो जाया कर, हमें ये फालतू कमरा भी अब चाहिए, क्योंकि उसे हम खाली करवा के बच्चों के लिए ऐसा कमरा बनाएंगे जहां वो सुकून से पढ़ सके। ये सुनकर रसूल बेगम तो गुस्से से कहने लगी, मैं क्या फालतू सामान हूँ जो तुम लोगों का जहाँ दिल चाहता है मुझे फेंक देते हो? इस कमरे से कार कबाड़ उठाओ, लेकिन ये कमरा अब मैं ही रखूँगी। ये कहना था तीनों बहुएं सांस पर चीखने लगी, चलाने लगी। बेटे भी चीखने लगे, चलाने लगे। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि तीनों बेटों ने माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। साथ में माँ की भैंस को भी रसूल बेगम को थमाया। रसूल बेगम तो रो रो कर बेहाल हो गई। गांव के बहुत से लोगों ने उसके बेटों को समझाया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार न थे। कहने लगे, उस औरत ने तो हमारी ज़िंदगी उजीरन बना दी है, हम उसे अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए रसूल बेगम बेचारी रोते धोते स्टेशन पर चली गई। वहीं पहुंचकर बेंच पर बैठी अपनी गाय की रस्सी हाथ में पकड़े रो रही थी। एक नौजवान उसके पास आया। जब उससे वहां बैठने की वजह दरियाफत की तो उसने रोते हुए अपने बेटों की सारी बातें उसे बताईं। तो उस नौजवान ने स्टेशन के पास ही उसे एक अच्छा सा झोंपड़ा डाल दिया। उसने नौजवान ने लड़कों को बहुत दुआएं दी। कुछ रसूल बेगम का इखलाक भी ऐसा था कि वहाँ पर आते जाते लोगों उनसे काफ़ी मायूस हो चुके होते। स्टेशन से कुछ दूरी पर ही एक कबाड़ वाला मौजूद था, जो अक्सर कचरा चुनने के लिए स्टेशन की जानब आ जाया करता। एक मर्तबा जब वो एक शाम वहाँ से ज़रूरत का कचरा उठाने के लिए आया तो क्या देखा, ये स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। अक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे हैं और स्टेशन की एक जानब एक झोंपड़ी बनी है जिसकी छत पर तो कपड़ा है, मगर दीवार के सिर्फ एक जानब चादर लगी हुई है, बाकी दीवारों पर सिर्फ लकड़ी के बांस ही मौजूद हैं और उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी है। ना ही उस झोंपड़ी में कोई चारपाई थी और ना ही वहाँ पर कोई ज़रूरत का सामान था। वो अक्सर रसूल बेगम को वहाँ पर अपनी भैंस चराते हुए देखता
सारा दिन रसूल बेगम का अपनी भैंस के साथ ही गुजारा हो जाता। वो इसका यूं ख्याल रखती जैसे वो उसका बहुत ही कीमती सरमाया हो था। वो भी गरीब ही मगर रसूल बेगम की हालत देखकर उसे उस पर तरस आने लगा था। भले ही उसका खुद का मुश्किल से गुजारा हो रहा था मगर उसके बावजूद रसूल बेगम की हालत देखकर और उसका अंदाज देखकर वो ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि ये कोई जद्दी पुश्ती गरीब या फिर खाना बदोश नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। वो कबाड़ वाला एक रोज़ एक पुरानी बुसीदा सी चारपाई और कुछ ज़रूरत का सामान जिसे बेचकर उसे अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, वो उठाकर रसूल बेगम के पास चला आया। उस वक़्त रसूल बेगम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी ताज़ा घास काट कर अपनी भैंस को दे रही थी। जब वो कबाड़िया जिसकी उम्र 22 साल थी उसके पास चला आया, रसूल बेगम ने लड़के को देखा तो हैरत से उसके पास मौजूद सामान देखने लगा है। तो वो लड़का कहने लगा कि अम्मा जी आप ये सामान अपने पास रख लें, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर रसूल बेगम की आंखें अश्कबार हो चुकी थी। उसने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर उससे वो सारा सामान ले लिया। उसकी आंखों में आंसू इस वजह से भी आ जाया करते थे कि गैर लोग उसका इखलाक और उसकी गुर्बत देखकर उसका साथ देने के लिए तैयार थे। अक्सर स्टेशन पर उतरने वाले लोग उसकी माली मदद भी कर दिया करते और बदले में रसूल बेगम से ढेरों दुआएं ले लिया करते। मगर उसकी औलाद भी तीन बेटे होने के बावजूद वो झोंपड़े में रह रही थी और किसी बेटे ने पलट कर ये देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि उनकी माँ कहाँ है। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया और उस भैंस ने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर तो रसूल बेगम की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए चुके थे। वो खुशी से वहाँ पर आने वाले हर शख्स को बता रही थी कि मेरी भैंस ने बच्चे दिए हैं। ये भैंस नहीं बल्कि मेरी टिकट है। कुछ लोग उसे ज़रा पागल समझते थे, यही समझते थे कि शायद रसूल बेगम का ज़हनी तवाज़ुन वक़्त के साथ साथ बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर वक्त उसकी ज़बान से यही बातें निकलती थी कि ये भैंसें नहीं हैं बल्कि मेरी उम्र का टिकट है। आखिर एक मर्तबा उससे किसी ने पूछ ही लिया कि ये कैसे टिकट है, तुम इन भैंसों को टिकट कैसे कह सकती हो। ये सुनकर रसूल बेगम कहने लगी कि तुम नहीं समझोगे। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुम भैंसों को पाल पोस कर बेचना, इससे जब पैसे मिलेंगे उसे हज करने के लिए अल्लाह के घर चली जाना। तभी तो मैं कहती हूँ कि ये भैंसें नहीं बल्कि मेरे हज का टिकट है। ये सुनकर तो लोग उसे मुतासर हुए बगैर नहीं रहते थे। वो ना ही किसी से फालतू बात करती थी और ना ही अपने दुखड़े रोती थी, बल्कि हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर एक से बड़ी शिकफ्तगी से पेश आती थी। आज तक किसी ने रसूल बेगम को अपने लिए जो खम उठाते या काम करते नहीं देखा था। सारा दिन वो अपनी भैंसों के ख्याल में लगी रहती। एक भैंस और अब उसके बिछड़ों को वो संभालती रहती। कभी ताज़ा घास ला कर देती तो कभी कोई ख़ास जड़ी बूटी दूर से तोड़ कर लाती और उन्हें देती और फिर भैंस का दूध बेचकर ही वो अपना गुजारा कर रही थी। न जाने कैसी बरकत थी कि बड़े बड़े ज़िम्मेदारों और जगीरदारों की भैंसें भी इस कदर सेहतमंद ना हो पाती थी जितनी सेहतमंद और काबिल दीद भैंस रसूल बेगम की थी। एक मरतबा इसी गांव का दू चौधरी स्टेशन पर चला जाया। जब उसे रसूल बेगम की भैंस वहां पर घास चरती हुई नजर आई, उसे सेहतमंद भैंसें चौधरी ने तो आम तौर पर किसी के पास भी नहीं देखी थी। पास खड़ा शख्स कहने लगा कि ये भैंस रसूल बेगम नामी औरत की है जो यहीं एक झोंपड़ी में रहती है। ये सुनकर चौधरी के मन में लालच आया था। वो चलता हुआ उस झोंपड़ी के पास आया जहाँ पर रसूल बेगम रहती थी। रसूल बेगम ने झोंपड़ी के बाहर लोगों की आवाज़ सुनी तो फौरन चेहरा छुपाए बाहर निकल आई। देखा तो सामने गांव का चौधरी खड़ा था। कहने लगा ये भैंसें आपकी हैं? तो रसूल बेगम ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बड़ी हिचकिचा रही थी कि उनके सामने गांव का चौधरी खड़ा है। वो कहने लगी बड़ी अच्छी भैंसें हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका मुआवजा दे सकता हूँ। तुम इस झोंपड़ी से निकलकर पक्के घर में रह सकती हो। ये सुनकर रसूल बेगम ने एक नज़र चौधरी पर डाली। चौधरी फौरन अपने माथे पर बाल डालकर कहने लगा
मैं चाहता हूँ कि तुम ये भैंसें मेरे डेरे पर छोड़ दो। मेरा अपना कारोबार है, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारी भैंसों को भी अपने पास रख कर अच्छा खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनका दूध बेचूंगा। जो भी मुआवजा हुआ वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह तुम्हारी भैंसें तुम्हें माला माल कर सकती हैं। ये सुनकर रसूल बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी, चौधरी, ये मैंने भैंसें, अगर मैं चाहती तो ये सब कुछ भी कर सकती थी। मेरे पास खैर से भैंस है, मैं भी घर घर जाकर दूध बेचती। खालस दूध की तो वैसे भी बड़ी डिमांड है। मैं खुद भी कमा सकती थी और अपने हालात बदल सकती थी। मगर चौधरी जी, मुझे दुनिया की आसाइशों की और पक्के घरों की ज़रूरत नहीं। मैं तो अपने रब सोने का घर देखना चाहती हूँ। उसके बाद चाहे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। इतना कह के रसूल बेगम एक मर्तबा फिर अपनी भैंसों के रखवाली में लग चुकी थी। जबकि चौधरी तो उस औरत की नीयत देखकर ही वहाँ से पलट कर चला गया। वहीं दूसरी जानब रसूल बेगम के तीनों बेटों को अब वो घर भी तंग लगने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों की वजह से माएँ भी आपस में लड़ने लगी थी। घर का सुकून तो जैसे बर्बाद होकर रह चुका था। रसूल बेगम और नूर मोहम्मद की हवेली बड़ी थी, वहाँ पर मज़ीद कमरे बनाए जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर मज़ीद घर में कमरे बनाकर सब भाई अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, ताकि रोज़ रोज़ की चिक चिक से तो जान छूटे। वो इसी सोच में गर्क थे कि पैसे कहाँ से लाएं। वो लोग जो कमाते थे वो तो घर के और बच्चों के खर्च पर ही लग रहा था। ऐसे में एक रोज़ गांव के चौधरी ने उन्हें अपने पास बुलाया और फिर यही ख्वाहिश ज़ाहिर की कि तुम लोग अपनी माँ की भैंसें दे दो, उसकी मैं तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर रसूल बेगम के बेटे बड़ी हैरत में मुब्तला हुए थे। चौधरी तो यही समझ रहा था कि उनकी माँ उनके साथ ही रहती है, मगर बेटों को तो खबर ही कहाँ थी कि अम्मा के पास इतनी अच्छी भैंसें मौजूद हैं। बहरहाल उनके मन में लालच जाग उठा था। उन्होंने चौधरी साहब को मना कर दिया कि हम हरगज़ अपनी भैंस नहीं बेचेंगे। चौधरी एक मर्तबा फिर खामोश हो चुका था, जबकि तीनों बेटे आपस में फैसला करने लगे कि हम किसी तरह अम्मा को घर लाएंगे। अम्मा से ना सही, अलबत्ता इन भैंसों से तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी रोज़ वो स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पर रसूल बेगम धूप में बैठी अपनी भैंसों की रखवाली कर रही थी। दूर से अपने बेटों को आता देखा तो फ़ौरन अपना चेहरा मोड़ गई। यही सोचा कि हो सकता है बेटों ने कहीं जाना हो, मगर बेटे ट्रेन को छोड़कर सीधा चलते हुए उसके पास आ गए और माँ के पास बैठकर अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए माफ़िया मांगने लगे। उनकी नज़र माँ पर कम और उनकी भैंसों पर ज़्यादा थी, जो माँ के पीछे खड़ी थी। माँ भी कुछ भांप चुकी थी। बेटे माफ़िया मांगते हुए कहने लगे कि अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब से तू घर छोड़कर गई है, घर में तो सुकून ही ख़त्म हो गया है। बेशक माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तू हमारे साथ घर चल, वो घर सबसे पहले तेरा है, बाद में हमारा है। मगर रसूल बेगम ने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे तुम लोगों की और उस घर की अब कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहीं खुश हूँ, खुली फ़ज़ा है, अपना घर है, किसी के मोहताज नहीं हूँ। मेरे पास मेरी बहनें हैं जिनसे मैं दिल की बातें कर लेती हूँ। फिर ये आस पास के लोग मेरा बड़ा ही ख्याल रखते हैं। कोई खाने के लिए कुछ कपड़ा पकड़ा जाता है तो कोई थोड़ी देर आकर बातें कर जाता है। ये सभी मेरा एक ख़ानदान बन चुके हैं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली। बेटों ने खूब मिन्नतें का तरले कर किए, मगर रसूल बेगम न मानी, तो मजबूरन उन्हें यूं ही वापस जाना पड़ा। उस रोज़ एक मरतबा फिर रसूल बेगम का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो एक जानब अपनी झोंपड़ी में बैठी कितनी ही देर रोती रही। उसकी भैंसें बैरी उसके झोंपड़े के पास बंधी थी। इसे पहले अपना शौहर याद आता रहा, फिर अपने बेटों की बेवफाई। अकेली औरत थी, अगर मर भी जाती तो कौन था जो उसे दफनाता। सगी औलाद तो शायद जनाजे को कंधा देने तक भी ना पहुंचती। गैर तो फिर गैर थे। यही सोचकर रोते रोते रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। जब सुबह उठी तो उसे अपनी भैंसों की बोलने की आवाज़ें नहीं आ रही थी।
जैसे ही झोंपड़े से निकलकर बाहर आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर मैदान साफ था। उसकी एक भी भैंस मौजूद नहीं थी। वो फिक्र के मारे देखने लगी कि कहाँ हक से रस्सी छुड़ाकर भाग तो नहीं गई, लेकिन ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी भैंसों की रस्सी अगर खुल भी जाती तो वो कहीं नहीं जाती। रसूल बेगम से बड़ी ही वफादार थी। वो हाँफते हुए अपनी भैंसों को इधर उधर ढूंढने लगी, यहाँ तक कि पूरा स्टेशन छान मारा, मगर उसकी भैंसें कहीं नहीं थी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग उसकी जानब आने लगे। वो रोते हुए सबको भैंस का बताने लगी तो हर कोई रसूल बेगम के साथ तड़प उठा था। सभी उसकी भैंसों को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि मस्जिदों में ऐलान भी करवा दिया गया, मगर उसकी भैंस कहीं नहीं मिली थी। कुछ लोग उसके पास आए और कहने लगे कि अम्मा भी तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, हो सकता है तुम्हारी भैंस मिल जाए, चोर पकड़े जाएं। मगर रसूल बेगम रोते हुए कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं अपनी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में दर्ज करवा दी है। ये मेरे हज की टिकट थी। मेरी भैंसें नहीं चोरी हुई, बल्कि मेरे हज का टिकट चोरी हो गया है। बस मेरा रब मुझे मेरा टिकट देगा। रसूल बेगम की ये खबर इस कदर फैली कि लोग दूर दूर से उसकी जानब आने लगे। हर कोई इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह रसूल बेगम की भैंसें मिल जाएं। रसूल बेगम को तो अपनी ज़िंदगी खाली लगने लगी थी। वो अपनी झोंपड़ी में बैठी रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ चुकी थी। उसे तो लगा था कि शायद अब उसकी मौत करीब है, वो मर कर ही अपने रब से मिलेगी। खाना काबा देखना तो जैसे उसके नसीब में ही ना था। मगर अगली सुबह जब वो उठी तो उसके होश उड़े थे। उसके झोंपड़ी के बाहर कहीं बड़े लोग बैठे रसूल बेगम के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। रसूल बेगम बुखलाई हुई बाहर आई और कहने लगी, क्या मेरी भैंसें मिल गई हैं? क्या तुम लोग मेरी भैंसों का पता लेकर आए हो? ये सुनकर उन लोगों ने आगे बढ़ते हुए रसूल बेगम के सर पर हाथ रख दिया और कहा कि हम आपकी भैंसों तो नहीं ढूंढ पर लाए। फिर अपनी जेब से पैसे निकाल कर रसूल बेगम की झोली में डाले और कहने लगे, रसूल बेगम, ना ही ये कोई खैरात है और ना ही कोई सदका, ना ही ये कोई हम तुम पर तरस कर रहे हैं, हमदर्दी के तौर पर तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बल्कि ये तुम समझो कि तुम्हारे हज का टिकट है। हम तुम्हें अपने पैसों से हज करवाएंगे। तुमने जो नेकियां की हैं वो तुम्हारा रब जानता है। जिस नीयत से तुम अपनी भैंसों को पाल रही थी वो भी तुम्हारा रब बेहतर जानता है। वो तुम्हारी नीयत से अनजान नहीं है, मगर अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रसूल बेगम को खुदा का घर दिखाएं। ये सुनकर रसूल बेगम रोने लगी थी। उसके मुंह से तो बात ही नहीं निकल रही थी। कितनी देर हिचकियां बंधे रोती रही। उसने पैसे वापस करने का सोचा, मगर वो लोग कहने लगे कि हरगिज़ नहीं, आप इन पैसों से जाकर हज करें, वक़्त का कोई भरोसा नहीं। कम अज़ कम आप अपनी कब्र में ये अरमान तो लेकर नहीं जाएंगी कि आपने हज नहीं किया। रसूल बेगम मुस्कुराई थी, कहने लगी कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा रब मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। रसूल बेगम एक काफ़िले के साथ हज पर चली गई। शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। पूरे गांव में रसूल बेगम की चर्चा थी। उसकी तो ख्वाहिश थी कि खाना काबा को देखते ही उसकी रूह परवाज़ हो जाए और वो यहीं पाक ज़मीन में दफन हो जाए। उसके जज्बात ऐसे थे कि लफ्ज़ों में बयान करना ही मुश्किल था। हज के फ़रज़ा सर इंजाम देकर वो वापस लौटी तो गांव वाले फूलों के हार लिए उसके इस्तकबाल को आए थे। सभी उसको लेकर स्टेशन पहुँचे तो रसूल बेगम ठटक कर रुकी थी, क्योंकि उसकी तीनों भैंसें उसके झोंपड़े के बाहर यूं ही बंधी थी जैसे पहले बंधी हुआ करती थी। वो हैरत से लोगों का चेहरा देखती और फिर उन भैंसों को मारे खुशी के वो दौड़ते हुए अपनी भैंसों के पास आई और उन्हें सीने से लगाया कर रोने लगी, कहने लगी कि ये भैंसें कहाँ से आ गई, तो चोरी हो गई थी। तभी गांव का चौधरी एक जानब से आया और रोते हुए अपने सर से पगड़ी उतार कर रसूल बेगम के कदमों में रख दी। रोते हुए कहने लगा, अम्मा जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी भैंसों को देखकर मन में अजीब सा लालच आ गया था, इसलिए मैंने रातों रात तुम्हारी भैंसें
चोरी करवा ली थी, मगर उस रात के बाद कभी सुकून से नहीं सो पाया। मेरे डेरे पर मौजूद सारी भैंसें बीमारी का शिकार होकर मर गई। मेरा कुछ भी नहीं बचा, लाखों का नुकसान हो गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये भैंसें तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें लौटा दी, बस मुझे दुआ मत देना। ये सुनकर रसूल बेगम ने कुछ ना कहा, बल्कि अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और चौधरी साहब को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपने किए की सज़ा खुद ही भुगत चुका था। बेशक जो मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए जाते हैं, वो उनके मसाइल को यूं हल करता है कि हमें कानो कान खबर नहीं होती, और सारे मामलात ऐसे हल हो जाते हैं कि हमें सजदा शुक्र करने पर मजबूर कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।